प्यार पतझड़ में भी सुनाए बहार, संगीत को न रोके दीवार, संगीत जाए सरहद के पार। वो संगीत माने ना धर्म जात, संगीत से जुड़ी कायनात, संगीत की ना कोई जुबान, संगीत में है गीता कुरान, संगीत में है अल्लाह और राम, संगीत में है दुनिया तमाम। संगीत माने न धर्म जात, संगीत से जुड़ी कायनात, संगीत की न कोई जुबान, संगीत में है गीता कुरान, संगीत में है अल्लाह और राम, संगीत में है दुनिया तमाम। तूफानों का भी रुख मोड़ता है संगीत, टूटे दिल को जोड़ता हिंद पुष्माल जिंद में जाए लो लो, रिंद पुष्माल। बस बस यार। It was an amazing presentation. That tick tick sound, it's still echoing in our ears. अर्पिता, what is the matter? What are you so busy with? क्या दोस्त, प्रॉब्लम क्या? Yeah. October 2nd is over, but we have an horse riding competition on our Rashtrapita, and I'm not that prepared. बस इतना ही, टेंशन क्यों यार? महात्मा गांधी के बच्चे अभी बता देंगे वो महापुरुष कौन थे। ग्रैब इट, डू वेल, विश यू द बेस्ट। A tribute to Mahatma Gandhi on the sesquicentenary year of his birthday. Glorious land of India, adorned with high mountains and beautiful rivers, decked with green meadows, flora and fauna, array of animals, birds and reptiles, of fluent spirituality and infinite languages. Oh, my motherland, you are the richest in the world. 150 years ago, you gave birth to the apostle of peace, the teacher of truth and non-violence, the missionary of unity, honesty and equality, The disciple of cleanliness and simplicity. You, the father of our nation, we call you lovingly Abaku. You are indeed Mahatma. We, your little children, salute you with love and respect. We cherish your memories with pride and reverence. You proved that all Indians are your brothers and sisters. You united the Hindu, Jain and Muslims, Christians, Sikh and Buddhists with the golden thread of love. So, united we stand and keep your spirit high. A single bullet snatched you away forever, but began to live in the hearts of millions. We value the lessons you taught, we uphold the legacy you left, and live them one by one as we
Shalom. Thank you. It was a stunning performance. When all wanted to sing and dance, they opted to learn and present this item. Dear audience, your courtesy will increase our confidence. Mahatma Gandhi, our patron, says, live as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever. Please listen to our blooming artists what they say. सालों जीना है तो ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, वक्त नहीं बचा, सामने है आखिरी खड़ी सालों. रफ्तार से चल पड़ी जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई. हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों. अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. Every moment now we're having a blast, singing oh eh oh oh, living every day like it's your last, singing oh eh oh oh, living for today, letting go of the past, singing oh eh oh oh. Give it up, everybody sing oh eh oh oh. हम सब जो साथ में रहे, खुशियाँ सब हाथ में रहे, हमसे बस फासले रहे यूं. हर तुरंत तुरंत चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिलके एक दूजे से कहे यूं. ये बातें छोटी मोटी बातें ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें, आंखों से लगाना कभी ये बरसाते मेरे यारों. अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. Singing oh eh oh oh, give it up, everybody sing oh eh oh oh. दुनिया मतलब की यार है, इसकी आदत बेकार है, इससे कम रखना वास्ता तू. अपनों से रखना दोस्ती, इनसे ही पूरी हर कमी, इनमें ही ढूंढ रास्ता तू. न जाना ये तूने न जाना ये मंजिल तेरी, इन्हें है तुझे पाना है, मैंने कहा जो सुन ले जमाना मेरे
ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ये जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई, हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Shalom. Thank you. This certainly was an artistic performance. It has totally fascinated spectators. The patron of our school is Mahatma Gandhi. The foundress of the congregation is Jesus is Mary Ward. हम जानते हैं कि महात्मा गांधी एक महान पुरुष हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं। बापू का जन्म 2 अक्टूबर 1869 और मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुआ था। पर मेरी वॉर्ड, उनका जन्म 23 जनवरी 1585 और मृत्यु 30 जनवरी 1645 में हुआ था। Interestingly, she died after a week of her birth at the age of 60. So, we always celebrate Mary Ward Week from 23rd January to 30th January. she is much related to our country, the freedom fighters, for she is born with Subhash Chandra Bose on 23rd January and died with Bapu on 30th January. इन दोनों की जीवनी में प्रकाश डालते हुए हम प्रस्तुत करना चाहते हैं Education of truth and non-violence to create peace. इसीलिए पेश है सत्य, शांति व शिक्षा। शालोम। आजाद सत्य तुम्हें कर देगा, सत्य के साक्षी बनो। सत्य ही जीवन है, सत्य से ही शांति है, सत्य को धारण करो। आजाद सत्य तुम्हें कर देगा, सत्य के साक्षी बनो। सत्य ही जीवन है, सत्य से ही शांति है, सत्य को धारण करो। असत्य कभी भी न बोले, वो समाज में आदर पावे। सबके मन को पसंद पड़ा, जो उच्च आसन वो पाए। असत्य कभी भी न बोले, वो समाज में आदर पावे। सबके मन को पसंद पड़ा, जो उच्च आसन वो पाए। आजाद सत्य तुम्हें कर देगा, सत्य के साक्षी बनो। सत्य ही जीवन है, सत्य से ही शांति है, सत्य को धारण करो। आजाद सत्य तुम्हें कर देगा, सत्य के साक्षी बनो।
सत्य ही जीवन है, सत्य से ही शांति है, सत्य को धारण करो। कपट से भरा ये जीवन मैला बनाया हमने, बदले से सत्य अंकुर खिले जैसे कीच में कमल। छल कपट से भरा ये जीवन मैला बनाया हमने, बदले से सत्य अंकुर खिले जैसे कीच में कमल। आजाद सत्य तुम्हें कर देगा, सत्य के साक्षी बनो। सत्य ही जीवन है, सत्य से ही शांति है, सत्य को धारण करो। आजाद सत्य तुम्हें कर देगा, सत्य के साक्षी बनो। सत्य ही जीवन है, सत्य से ही शांति है, सत्य को धारण करो। सत्य ही जीवन है, सत्य से ही शांति है, सत्य को धारण करो। अरे यार, ये सत्य क्या है? सुना है सत्य से उच्च आसन पाते हैं। आओ मैं बताता हूँ। सत्य का अर्थ होता है आजाद होना। इतना ही नहीं, सत्य भगवान का सबसे महत्वपूर्ण नाम है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। जहाँ सत्य नहीं है वहाँ सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता है। सच्चा ज्ञान जीवन में हमेशा आनंद एवं शांति देता है। इसलिए हम भगवान को सत्य, चित और आनंद के रूप में जानते हैं। सत्य को देखना चाहते हो तो वो देखो, सत्य का पुजारी एवं शांति का दूत। इन्होंने बिना खड़क, बिना तोप, बिना हिंसा एवं वैमनस्य से बड़ी शालीनता से देश को आजादी की लड़ाई लड़ने का रास्ता दिखाया। हाँ बेटा, आपने ठीक सुना। सत्य और अहिंसा को अपनाने से मुझे जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आओ, मैं तुम्हें सत्य की राह दिखाता हूँ। माँ, सर उत्तम राम आ रहे हैं। दीदी, तुम झूठ बोलती हो। मैं क्यों झूठ बोलूं? तुम अंदर जाकर कुर्सी लेकर आओ। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते सर। जीते रहो, जीते रहो। करमचंद जी घर पर नहीं हैं? सुबह बाहर गए थे, अभी तक आए नहीं। कुछ बताना है क्या? हाँ, मुझे आपके बेटे मोहनदास के बारे में कुछ बताना है। क्या बात है सर? तुमने स्कूल में कुछ गलत काम तो नहीं किया? नहीं माँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। जरूर इसने कुछ किया होगा। घर पर तो बहुत सीधा दिखता है, पता नहीं स्कूल में किस तरह की हरकतें करता होगा। रलियत बेन, तुम चुप रहो, सर को बताने दो। आप बताइए सर, क्या बात है? वो गलत काम तो नहीं किया, लेकिन लेकिन से आपका क्या मतलब है सर? इसने कल मेरा नाक कटवा दिया। किसने? किसका नाक कटवा दिया? नमस्ते दीवान जी, मैं आप ही की राह देख रहा था। नमस्ते। क्या बात है, आप इतनी सुबह सुबह हमारे घर पे आए हैं? वही तो सर बता रहे थे कि आपके लाडले ने उनका नाक कटवा दिया। रलियत बेन, तुम फिर से बोलने लगी? जब बड़े लोग बोलते हैं तो तुम्हें बीच में क्यों बोलना है? तुम अंदर जाओ और तुम इधर बैठो। कल हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन करने के लिए एजुकेशन विभाग से एक इंस्पेक्टर आए थे। वो तो हर साल आते हैं, तो क्या हुआ? वे बच्चों से अंग्रेजी डिक्टेशन ले रहे थे और मोहनदास से केटल का स्पेलिंग पूछे थे। ये तो अंग्रेजी भाषा से कोसों दूर भागता है, ये कैसे बोल सकता है?
इस बात को तो मैं अच्छी तरह से जानता था। लेकिन जब भी देखो मोहनदास तो अंग्रेजी की किताब लेकर बैठा ही रहता है। लेकर बैठे रहने से अंदर नहीं जाता है, पढ़ना पड़ता है। सर आप बताइए आगे क्या हुआ? आगे क्या होना, कक्षा में सब लोग बता दिए और ये बता नहीं पाया। मैं इसको इशारे से बता रहा था, फिर भी ये बता नहीं पाया था। क्या बेटा, तुमने पढ़ा नहीं था? पढ़ा था, लेकिन मैं उस समय भूल गया था। इसीलिए तो मैं तुम्हें इशारे से बता रहा था। कम से कम उस समय तो ध्यान देना चाहिए था। सर, ऐसा करना पाप नहीं है? मतलब? जब मैं सचमुच में भूल गया था और आपके इशारे को देखकर उत्तर देना पाप नहीं है क्या? देखिए आपके बेटे को कितना नादान और नासमझ है। क्या सत्य का साथ देने से मैं नादान हो गया हूँ? क्या सत्य का पक्ष लेने से लोग मुझे नासमझ समझते हैं? सच्चाई का मार्ग अपनाने से लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्यों राजा हरिश्चंद्र को सत्य का पुरुष मानते हैं, क्योंकि वे सत्य का साथ दिया और अपना सब कुछ खो दिया, परंतु सत्य को कभी सत्यानाश नहीं होने दिया। मेरे पिताजी करमचंद गांधी हमेशा बुरे दोस्तों से दूर रहने के लिए बताते थे, लेकिन मैंने कभी उनकी बातों को नहीं माना, क्योंकि मेरे लिए दुनिया में कोई बुरे नहीं थे और बुरा होने पर भी उन्हें अच्छा व्यक्ति बनाने का ठेका मैंने ले रखा था। मेरे कुछ खास दोस्त थे। आज भी तुम लोग देरी से आए हो? क्या करे यार, ये दोनों तो बहुत देर कर दिया। त्रिभुवन, ये दोनों मत कहो। मैं तो शेख मेहताब के घर समय पर पहुंच गया था, लेकिन एक घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मेरे कारण ही आज तुम लोग स्कूल जाने के लिए लेट हो गए। तो आज हम एक काम करेंगे। क्या करेंगे? स्कूल नहीं जाएंगे। तुम क्या बकवास करते हो? बकवास नहीं, सही बात है। अगर हम इन्हें देर से स्कूल जाएंगे तो मास्टर छड़ी से हमारा स्वागत करेंगे। इससे अच्छा आज पूरा छुट्टी मार लो और कल आराम से मास्टर से मार खा लो। मैं स्कूल जाता हूँ, मुझे तो डर लगता है। मैं भी जाता हूँ। तुम लोग डरपोक हो, चले जाओ। मेरे साथ अपना दोस्त मोहनदास है। तुम क्या कहते हो? आज हम लोग कहाँ जाएंगे? आज मैं तुम्हें एक नई चीज खिलाऊंगा। वो क्या है? वो सब अभी नहीं बताऊंगा, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा। पता है, शेख मेहताब के साथ मेरी दोस्ती इतनी बढ़ गई थी कि ऐसा कोई भी गलत काम नहीं था जो वो मुझे नहीं सिखाया हो, जैसे मांस खाना, सिगरेट पीना, चोरी करना इत्यादि। मेरे घर वालों के मना करने पर भी मैंने शेख मेहताब के साथ दोस्ती इसलिए बनाया ताकि मैं उसकी बुरी आदतों को छुड़ा सकूं, लेकिन उल्टे उसने मुझे सब बुरी आदतों को सीखने को मजबूर कर दिया। लेकिन ये सब अधिक समय तक नहीं चला। मेरे लिए चैन की, क्योंकि वे बीमार थे, और न ही अपनी माँ से, क्योंकि माँ पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी, या फिर पापा की सेवा में। लेकिन एक दिन मैंने हिम्मत का काम किया। देखिए, आपका बेटा सुबह घर से निकला और अब आ रहा है। बेटा, बताओ कहाँ गए थे? बापू, मैं अपने दोस्तों के घर गया था। सुबह से शाम तक दोस्तों के घर जाता है। पता नहीं अपने घर से ज्यादा दोस्त के घर पर क्या रखा है। ठीक है, बस करो, पढ़ने जाता होगा। आप ही ने उसको अपने सिर पे चढ़ा रखा है। मैं जाती हूँ। यह क्या है बेटा? आप पढ़ लीजिए बापू। तुम ही पढ़ के सुना दो बेटा। बापू,
आप जितना मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। आप मेरे लिए कोई भी कमी नहीं रखते हैं। मेरे हर ज़रूरतों को मेरे मांगने से पहले पूरा कर देते हैं। लेकिन मैंने आपके विश्वास को तोड़ दिया है। जब भी आपके सामने आता हूँ मेरे अंदर एक प्रकार का डर पैदा होता है। मैं कई रात ठीक से सोया नहीं हूँ। मैं बीच रात में उठ जाता हूँ और अपने किए हुए कर्मों को सोचकर रोता हूँ। माँ, बड़े भाई और दीदी के मना करने पर भी मैंने अपनी दोस्ती सईक मेहताब के साथ बना कर रखी, यह सोचकर कि उसको बुरी आदतों से बाहर ले आऊँगा। लेकिन मेरी सोच गलत निकली। हकीकत में उसने सब बुरी आदतों को मुझे सिखाया। सब बुरी आदतों के बारे में बताने या लिखने के लिए मुझे भी शर्म आती है, लेकिन कुछ तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। जैसे सिगरेट पीना, घर से पैसा चोरी करना, स्कूल बंद करना और भी है। मुझे मालूम नहीं कि आप यह सच्चाई जानने के बाद मुझे किस नज़रिए से देखेंगे, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने दिल से इस बात के बोझ को उतारना है। मुझे आपके और मेरे अंदर आत्मा के सामने निडर खड़ा होना है। बापू, क्या आप मुझे माफ़ करेंगे? क्या मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देंगे? आप मेरे अयोग्यता के लिए जो भी दंड देना चाहते हैं दे दीजिए। मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। सब प्रेम, आपका अयोग्य पुत्र मोहनदास गांधी। बेटा मोहनदास, हम सब लोग गलतियां करते हैं, लेकिन जब हमें महसूस होता है कि हम अयोग्य हैं, उसी समय से हम पाप करना छोड़ देते हैं और अच्छे रास्ते पर चलने लगते हैं। उस दिन मेरे बापू के आंसुओं ने मेरे हर प्रकार की अयोग्यता को धो डाला। मैंने निर्णय लिया कि आइंदा कभी ऐसा काम नहीं करूंगा जिसके कारण मेरे बापू को आंसू बहाना पड़े। मैं 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गोपाल कृष्ण गोखले का निमंत्रण स्वीकार करके भारत देश आया और भारत देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने लगा। 1918 ईस्वी में अनसुईया बेन साराबाई नामक एक समाज सेविका ने मुझे गुजरात आने का निमंत्रण दिया। आगे क्या हुआ आप ही देख लीजिए। आज हम सब के लिए खुशी की बात है कि हमारे बीच मोहनदास गांधी जी हैं। आप लंदन में वकालत की पढ़ाई किए हैं और पिछले 21 साल दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत थे। मैं आपके बीच में मोहनदास गांधी जी का स्वागत करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और अपने ज्ञान भरे शब्दों से संबोधित करें। आप सबको सबसे पहले धन्यवाद कि मुझे आप लोगों ने योग्य समझकर निमंत्रण दिया। सबसे पहले आप अपनी समस्या बताइए, उसके बाद हम लोग उसका समाधान ढूंढेंगे। सर, मैं आपको संक्षेप में बता दूं, हमारे करीब 6000 मजदूर लोग कपड़े के मिल में काम करते हैं। हमारे वेतन को पिछले 10 साल से बढ़ाया नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? आप सबको मालिकों से बात करनी चाहिए। वो सब बहुत बार हो चुका है। ठीक है, हम एक नया तरीका अपनाएंगे।
कल से काम पर नहीं जाएंगे। हम अहिंसा के मार्ग पर चलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन हाथ में हथियार नहीं लेना, कभी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप बड़े हैं, आपकी बात हम मानते हैं। हमारी अनसुईया दीदी और आप हमारे साथ हैं। मेरी बातों को मानकर सारे मजदूर 21 दिन काम करने के लिए नहीं गए। कंपनी का मालिक ना किसी को बुलाया, ना ही वेतन बढ़ाने का नाम लिया, और मजदूर लोग धीरे धीरे उम्मीद खोने लगे। मैंने भी कंपनी के मालिक से 2-3 बार मिलने की कोशिश की। मेरी ये कोशिश भी व्यर्थ चली गई। एक नया विचार लेकर मैं फिर मजदूर लोगों से मिलने गया, जो निराश और हतोत्साहित हो चुके थे। नमस्ते जी। नमस्ते। 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 आप सबको भी नमस्ते। इस हालात में आप लोग कैसे हैं, यह पूछना शोभा नहीं देता है। हमें पता है पिछले 21 दिनों से आप काम के लिए नहीं गए हैं और उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। यह तो मुझे पहले से पता था, बस हम लोग आपकी बात को सुनकर पगला गए। आप सही हैं। जब तक हम लोग हथियार नहीं लेंगे तब तक हमारे मालिक सुनने वाले नहीं हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। आप लोगों को इतना जल्दी निराश नहीं होना चाहिए। निराश होने की बात नहीं है। हमारे घर पर चूल्हों में बिल्ली सो रही है। मेरी बेटी कहती है पापा का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए नौकरी करने नहीं जाते। हमें ऐसा सत्याग्रह नहीं करना है, बहुत हो गया। आप मेरी बात को बस एक बार और मानिए। आज से एक नया धरना शुरू करेंगे। पिछले 21 दिनों से जो कर रहे थे वो भी तो नया धरना था। आप कुछ समय शांत रहिए। मोहनदास जी, आप बताइए हमें क्या करना है। आज से जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम भूख हड़ताल करेंगे। पिछले 21 दिनों से हम लोग कौन सा दावत खाकर हड़ताल कर रहे हैं? हमारा पूरा परिवार केवल पानी से अपना पेट भर रहा है। आप मेरी बात को पूरा सुनिए। मैंने कहा आज से मैं भी आपके साथ भूख हड़ताल पर बैठने जा रहा हूँ। मोहनदास जी, आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि केवल भाषण देना मार्गदर्शक का काम नहीं, बल्कि करके दिखाना भी है। क्या इस भूख हड़ताल से मालिक हमारी बातों को मानेंगे? सबसे पहले वे आपको अनदेखा करेंगे, इसके बाद वे आप पर हंसेंगे, आपसे लड़ेंगे, लेकिन अंत में आप ही जीतेंगे। मैं आपसे इन सब की ओर से माफी मांगता हूँ, लेकिन आप हमारे लिए इतना बड़ा कदम मत उठाइए। हमारा संघर्ष हमें करने दीजिए। अब ये संघर्ष हम सबका है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। आपको पता है, हमारा भूख हड़ताल और 21 दिनों तक चला। आखिर में मालिकों ने हमारी मांगों को 50% बोनस के बदले में 35% बोनस देने के लिए तैयार हो गए, जबकि पहले 20% बोनस देने के लिए भी तैयार नहीं थे। यह था मेरा सबसे पहला सत्याग्रह धरना। दुनिया को साबित कर दिखाया कि हम अहिंसा के माध्यम से भी अपनी मांगों को पूरा कर सकते हैं। मैं बाद में सोचने लगा, क्यों हमारे भारत देश में गरीबी और अमीरों के बीच में काफी बड़ा दरार है? क्यों मध्यम वर्ग परिवारों की संख्या कम है? मैं इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढता रहा। तब मुझे लगा, हमारे देश में शिक्षा ग्रहण करने वालों की संख्या बहुत कम है। वास्तविक कठिनाई यह है
क्योंकि हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि शिक्षा वास्तव में क्या है। क्या हम उसी तरह शिक्षा के मूल्य का आकलन करते हैं जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज बाजार में भूमि या शेयर के मूल्य का आकलन करते हैं? हम केवल ऐसी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं जिससे छात्र अधिक कमा सके। हम शिक्षार्थी के चरित्र के सुधार में शायद ही कोई ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं कि लड़कियों को कमाने की जरूरत नहीं है, तो उन्हें शिक्षित क्यों किया जाना चाहिए? जब तक इस तरह के विचार रहेंगे, तब तक हम शिक्षा के सही मूल्य को जान नहीं पाएंगे। ज्ञान का दीप जलाए जग में, शिक्षा की ज्योत जलाकर। ज्ञान का दीप जलाए जग में, शिक्षा की ज्योत जलाकर। हो जाए जग में उजियारा, चारों दिशाओं में भर दे प्रकाश। हो जाए जग में उजियारा, चारों दिशाओं में भर दे प्रकाश। रोशन मन हमारा हो तो उत्तम फल भी होगा। बिखरे ना कोई, टूटे ना कोई, बनकर दीप जले हम। बिखरे ना कोई, टूटे ना कोई, बनकर दीप जले हम। हो जाए जग में उजियारा, चारों दिशाओं में भर दे प्रकाश। आओ ज्ञान की ज्योत जलाई, दूर मिटाई अंधियारा। सूरज सी किरणें बन जाए हम, जग में लाए सवेरा। सूरज सी किरणें बन जाए हम, जग में लाए सवेरा। ज्ञान का दीप जलाए जग में, शिक्षा की ज्योत जलाकर। ज्ञान का दीप जलाए जग में, शिक्षा की ज्योत जलाकर। हो जाए जग में उजियारा, चारों दिशाओं में भर दे प्रकाश। हो जाए जग में उजियारा, चारों दिशाओं में भर दे प्रकाश। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान और शिक्षा की ज्योति ही हम सबके अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा सकती है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, 25 वर्ष
पूर्व शुरू किया गया यह महात्मा गांधी आदर्श विद्यालय हमारे समाज से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने का कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। आज आप और मैं यहां आए हैं इस विद्यालय की रजत जयंती मनाने। इस शुभ पावन अवसर पर मैं प्रभु यीशु के धर्म समाज की धर्म बहनों को बधाई देता हूं। तत्पश्चात इस धर्म समाज की संस्थापिका मदर मेरी वार्ड, जो एक महान क्रांतिकारी महिला थी, उन्होंने 400 वर्ष पूर्व नारी उत्थान व नारी शिक्षा को आगे बढ़ाया, नारी को सम्मान दिलाया एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। उनका कहना था, आने वाले समय में महिलाएं बहुत कुछ करके दिखाएंगी, अतः मैं मेरी वार्ड के जीवन पर प्रकाश डालना चाहता हूं। 16वीं शताब्दी इंग्लैंड में तीव्र स्वार्थता, शोषण, हिंसा, अत्याचार, धार्मिक विभाजन इत्यादि के समय इंग्लैंड देश के मलविथ नामक गांव में 23 जनवरी 1585 में मेरी वार्ड का जन्म हुआ था। मेरी वार्ड श्रीमती उर्सुला वार्ड एवं श्री मार्मड्यूक की पहलौठी बेटी थी। बचपन से ही वह ईश्वर भक्त थी। उनका पहला और अंतिम शब्द यीशु था। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में हमेशा ईश्वर की इच्छा को पूरा किया। मेरी वार्ड अपने सौंदर्य के लिए जानी जाती थी। वह एक अतुलनीय वीरांगना थी। उनके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण, बुद्धिमता, संतुलित आचरण, ईश्वर में दृढ़ विश्वास एवं दूरदर्शिता का समन्वय था। 10 वर्ष की अवस्था से ही उनसे शादी करने के लिए एक के बाद एक लड़के प्रस्ताव लेकर आने लगे और सबको मेरी मना करती आ रही थी। लेकिन जब वह 15 वर्ष की थी तो एक दिन, गुड मॉर्निंग मोमड्यूक। यह क्या, बाप और बेटी इतनी दूर यात्रा करके मुझसे मिलने आए हैं? क्या कोई खास बात है? बात कुछ खास नहीं है फादर। उस दिन मैंने आपको मेरी वार्ड के बारे में बताया था ना। हाँ, अब याद आया। क्या हुआ बेटी? मुझे कुछ नहीं हुआ फादर। फिर क्यों सर एडमंड से शादी करने से मना कर रही हो? फादर, आपको पता है मैं तो बचपन से ही प्रभु की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर चुकी हूँ। बेटा, सर एडमंड भी आपको बहुत प्यार करते हैं। यदि आप सर एडमंड से शादी करती हैं तो यह भगवान की एक महान सेवा करने के समान होगा। यह अपना कर्तव्य समझकर करो बेटी। फादर, आप मुझे थोड़ा वक्त दें। क्यों? मुझे प्रार्थना करना है। ठीक है, जाओ। मेरी वार्ड प्रार्थना करने के लिए जाती है और फादर वोल्टवे भी पूजा करने के लिए जाते हैं। बेटी, अब बताओ क्या निर्णय लिया? पापा, वो मैं... बेटी, तुम शादी नहीं करना। फादर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं। जब मैं पूजा कर रहा था उस समय दाखरस का कटोरा मेरे हाथों से गिर गया।
इस घटना से मुझे ईश्वरीय प्रेरणा मिली कि मेरी वार्ड का जीवन प्रभु के लिए है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप अपनी बेटी को उसकी इच्छा अनुसार धर्मवान बनने की अनुमति दें। आपकी बेटी संपूर्ण रूप से अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना चाहती है। मेरी वार्ड खुशी खुशी अपने पिताजी की अनुमति के साथ धर्म बहन बनने के प्रशिक्षण के लिए और अपने को पूर्ण रूप से प्रभु को अपना जीवन समर्पित करने के लिए अपना घर छोड़ देती है। अपने मन में ईश्वर के प्रति आस्था लिए हुए वो आगे बढ़ती गई और एक दिन सन 1609 में दर्पण के सामने अपने केश संवारते समय